بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر آپ کو دیں کہ شہر قائد میں بنیادی سہولیات کا فقدان، 3 ہٹی میں گیس کی فراہمی نہ ہونے کے باعث خواتین پریشان، کہتی ہیں کھانا بنانے کے لیے گیس آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، بل بھیج دیتے ہیں گیس نہیں ملتی۔ رمضان میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں رمشا اسماعیل جی، آگاہ کیجیے اس حوالے سے۔ کراچی کے علاقے 3 ہٹی انگارہ گوٹ میں گیس کی عدم فراہمی اور پریشر میں کمی کے باعث خواتین شدید پریشان۔ خواتین کا کہنا ہے کہ گھروں میں کھانا بنانے کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، بل تو باقاعدگی سے بھیج دیے جاتے ہیں مگر گیس فراہم نہیں کی جاتی۔ رمضان میں بھی صورتحال تبدیل نہیں ہوتی۔ گیس جو ہے نا صبح 6 بجے کی ٹائمنگ ہے اوقات کار آنے کی یہاں پر، اور پریشر اتنا سلو ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں نا، جب لائٹ چلی جاتی ہے تو 1.5 گھنٹے کی لائٹ پہ نا بالکل سلو ہو جاتا ہے، اور مزید اور جو ہے نا سلنڈر وغیرہ ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے، مہمان وغیرہ آتے ہیں تو نا بڑی پریشانی ہوتی ہے، بازار سے کھانا منگوانا پڑتا زیادہ تر۔ گیس کی عدم فراہمی سے شہری باہر سے کھانا منگوانے پر مجبور ہیں۔ ووٹ لینے کے لیے تو سب آ جاتے ہیں مگر گیس فراہم کرنے والا کوئی نہیں۔ گیس کے اپنے اوقات کار، جبکہ گیس پریشر انتہائی کم ہوتا ہے۔ علاقے میں گیس اس لیے نہیں آتی کہ جب پہلے یہاں پہ لیاری ایکسپریس وے بنا تھا تو اس ٹائم پہ جو انہوں نے گھر توڑے تھے، جس کی وجہ سے لائنیں چوک ہو گئی ہیں نیچے اور بلاک ہو گئی ہیں۔ تو ہم نے ٹاؤن چیئرمین کو بھی دی تھی درخواست، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت کرو، وہاں جا کے جو بھی ہے۔ ان کو روڈ بنانے کے لیے بھی کہا، اور بھی 10 مسائل ہیں پانی کے، اس کے اس کے، لیکن وہ سب کہتے ہیں کہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، آپ وہاں پہ جا کے کمپلین کرو اپنی۔ تو بس یہی بات ہے ساری ان کے لیے، یہ ہے کہ چیئرمین صاحب کے لیے کچھ کریں، ہمارے لیے بھی، ندی کے لیے، یہاں پہ بھی رہائشی رہتے ہیں اور ووٹ کے لیے آپ یہیں پر ہی آتے ہیں بھائی۔ علاقہ مکینوں کے مطابق سڑک کی تعمیر کے دوران گیس پائپ لائن متاثر ہوئی، جس کے بعد سے گیس کی فراہمی متاثر ہے۔ حکام مسئلہ حل کریں۔ شہر میں بجلی اور گیس کے مسائل ختم نہ ہو سکے، کرنگی، اورنگی ٹاؤن، اولڈ سٹی اور ملیر سمیت بیشتر علاقے متاثر ہیں۔ سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی کے مطابق صنعتی صارفین کیپٹیو پاور پلانٹس اور سی این جی اسٹیشنز کو کل صبح 8 سے اگلے 24 گھنٹوں کے لیے گیس کی فراہمی بند رہے گی۔ گھریلو اور کمرشل صارفین کے لیے رات 10 سے صبح 5 بجے تک گیس کی سپلائی معطل رہے گی۔ دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں میں 4 سے 10 گھنٹے تک بجلی بندش کی شکایات ہیں، جبکہ ترجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ شہر کے 70% علاقوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے۔ منافع خور اور ذخیرہ اندوز خیر منائی، سندھ حکومت آئندہ ہفتے سے کارروائیاں شروع کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید رمضان المبارک سے قبل ہی منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ محکمہ قیمت و رصد آئندہ ہفتے سے ایکشن کرے گا۔ اجلاس میں تمام متعلقہ اداروں کو طلب کیا ہے۔ انہوں نے کہا مارکیٹس، بازاروں اور پیٹرول پمپس پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سندھ پولیس کے افسران کے لیے بڑی خوشخبری، حج 2026 کے دوران خادم کی حیثیت سے حج پر جانے والے افسران اور اہلکاروں کے ناموں کو فائنل کر دیا گیا۔ مختلف اضلاع سے 25 افسران اور اہلکار حج کے دوران انتظامی ڈیوٹیاں انجام دیں گے۔ خوش نصیب اہلکاروں میں انسپیکٹر سے لے کر اے ایس آئی رینک تک کے افسران شامل ہیں۔ تمام اہلکاروں کو حج کے دوران انتظامی ٹریننگ کے لیے اسلام آباد بھیجنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تمام اہلکار 9 فروری کو اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ پہلے فیز میں 25 اہلکار 9 فروری سے 18 فروری تک ٹریننگ حاصل کریں گے۔ آئی جی سندھ نے صوبے بھر کے ایڈیشنل آئی جیز اور اے آئی جیز کو خط لکھ دیا۔ تمام افسران و اہلکاروں کو فوری روانہ کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ایکسپو سینٹر میں سجی مائی کراچی نمائش میں خوبصورت کپڑوں کی شکل میں رنگوں کی بہار آ گئی۔ مختلف برانڈز نے خواتین اور مردوں کے لیے خوبصورت اسٹچ اور ان اسٹچ سوٹ کی دیدہ سے ورائٹی متعارف کرا دی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے، جو کپڑوں کے ایک سٹول میں پر موجود ہیں۔ جی آگاہ کیجیے اس حوالے سے۔ جی بالکل، مائی کراچی نمائش میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات کی جائے تو مختلف جو برانڈز ہیں انہوں نے اپنی جو مصنوعات ہیں وہ شوکیس کیے ہیں۔ مختلف برانڈز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیبرک کے حوالے سے بات کی جائے تو خواتین کے حوالے سے بھی مختلف جو فیبرک ہے، اور بالخصوص اگر ہم جینٹس کے حوالے سے بات کریں تو مختلف فیبرکس جو ہیں وہ یہاں پر شوکیس کیے گئے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ خریداری بھی کر دی ان فیبرکس کی۔ اس کے حوالے سے ہم بات کریں، میں جس اسٹال میں موجود ہوں لاکھانے یہ اس کمپنی کا نام ہے، جنہوں نے اپنی مختلف مصنوعات یہاں پر پیش کی ہیں، اور ان کے جو پروڈکٹس ہیں جو کہ مینس کی فیبرکس ہیں یا پھر فیمیل جو فیبرک ہے وہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے۔ محمد عمیر جو کہ ایریا مینیجر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ محمد عمیر یہ بتائیں کہ مختلف برانڈز یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے اپنے اپنے فیبرکس دیے ہوئے ہیں، آپ کا کون کون سا فیبرکس ہے اور آپ کی فیبرکس کی ایسی کیا بات ہے جو کہ آپ کی اس پروڈکٹ کو دوسری پروڈکٹ سے ممتاز بناتی ہے؟
एक तो हमारे प्राइस बहुत कम है, हमारे पास 1700 से लेके 2100 तक के हैं मेंस के। इसके अलावा हमारे पास लेडीज़ के भी सूट हैं जो 1700 के हैं 3 पीस। इसके अलावा 1 पीस है हमारे पास 1200 की, उसमें स्टिच सूट है। 2 पीस सूट है 1800 के स्टिच में। इसके अलावा हमारे पास ट्राउज़र्स हैं 650 के हैं, दुपट्टे हैं 650 के हैं। प्राइस हमने ऑल्सो बहुत कम रखी हुई है यहाँ पर, और हमारा जो फैब्रिक है वो बहुत अच्छा है लखानी का, बहुत हमारे को फीडबैक अच्छा मिलता है यहाँ से, और ऑल ओवर बहुत अच्छी चीज़ें हमारे पास आई हुई हैं। बिल्कुल मोहम्मद उमैर से हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई और इनका ये कहना है कि बहुत अच्छा फीडबैक मिला है और इनकी ये जो प्रोडक्ट्स है ये ना सिर्फ जो शहरी है वो पसंद कर रहे हैं, चाहे वो मेंस की हो या फिर ख़वातीन के हवाले से जो फैब्रिक हो, लॉन हो, कॉटन हो, इसके साथ साथ वॉशिंग वेयर हो, पसंद किया जा रहा है ख़ासा। और इसके साथ साथ इनकी तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट भी की जाती है, और एक्सपोर्ट की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का और इस कंपनी का जो फैब्रिक है वो पसंद किया जाता है। यही वजह है कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी मिलते हैं। और टेक्सटाइल के हवाले से बात करें तो टेक्सटाइल में पाकिस्तान का जो फैब्रिक है वो ख़ासा पसंद किया जाता है। तो ये वजह है कि हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट के फिगर्स जो हैं टेक्सटाइल में जो है वो बहुत ज़बरदस्त आते हैं, जो कि इस बात की अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो दुनिया भर में मकबूल है। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम तारीखी मार्केट्स की बहाली का काम जारी है। एम्प्रेस मार्केट, हसन अली होती मार्केट, सोल्जर बाज़ार के बाद सिविल लाइन्स मार्केट को बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। जी बिल्कुल, मेयर कराची ने महकमा इंजीनियरिंग को 1927 में कायम होने वाली सिविल लाइन्स मार्केट की असर नो तामीर के अहकाम दे दिए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि रवां साल बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम सिविल लाइन्स की मार्केट को बहाल किया जाएगा। KMC के ज़ेर इंतज़ाम मार्केटों में सोलर सिस्टम भी नस्ब किया जा रहा है। कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन जेंडर सेल के तहत वर्कशॉप, जिसमें ख़वातीन मुलाज़िमीन को हरासानी और शिकायत की रोकथाम के लिए आगाही फ्राहम की गई। वाटर कॉरपोरेशन के तहत मुनक्किदा वर्कशॉप में ख़वातीन को वर्क प्लेस पर हरासानी से मुतल्लिक़ क़वानीन, शिकायती निज़ाम और उनके पेशा वराना हकूक़ के बारे में आगाही फ्राहम की गई है, जबकि इदारे की जानिब से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मुसावी मौक़े की फ़राहमी के अज़्म का अयादा किया गया। CEO अहमद अली सदीकी ने इस इक़दाम को वाटर कॉरपोरेशन की तारीख में पहली जामे कोशिश करार देते हुए कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना इदारे की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुस्तक़बिल में भी एक महफूज और मस्बत काम के माहौल के क़याम के लिए अमली इक़दाम जारी रखे जाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 44 पॉइंट्स कमी से 1,84,129 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुआशी रिपोर्ट पर सरमायाकारों की नज़रें जमी रही। जनवरी 2026 में तिजारती खसारा महाना 29% और सालाना 7% कम हुआ। अशरफ खान की ये रिपोर्ट। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव मगर सिमत मुस्बत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। मार्केट में हफ्ते के दौरान मिला जुला रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स 44 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,84,129 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,88,312 और कम तरीन 1,82,792 पॉइंट्स रही। कारोबारी सरगर्मियों के लिहाज से एक हफ्ते में 196 अरब रुपए मालियत के 4 अरब शेयर्स का लेन देन हुआ। स्टॉक मार्केट के माहिरीन की राय है कि सरमायाकार हफ्ते के दौरान मोहतात रहे। रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट कैपिटलाइजेशन में 55 अरब रुपए का इजाफा हुआ। माशी इशारियों के मुताबिक जनवरी 2026 में महंगाई की शरह 5.80% रही, जो दिसंबर में 5.61% थी। तिजारती महाज पर जनवरी 2026 में तिजारती खसारा महाना बुनियाद पर 29%, जबकि सालाना बुनियाद पर 7% कम हुआ। जनवरी 2026 में तिजारती खसारा 2 अरब 73 करोड़ अमरीकी डॉलर रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान, सिटी 21। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी आ गई। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 6 पैसे सस्ता हो गया। एक हफ्ते में यूरो 1 रुपये 76 पैसे और बरतानवी पाउंड 3 रुपये 48 पैसे सस्ता हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मामूली बेहतरी, डॉलर सस्ता हो गया। पाकिस्तानी रुपए की कदर में एक हफ्ते के दौरान मामूली बेहतरी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 269 रुपये 71 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 पैसे कमी के बाद 280 रुपये 75 पैसे की सतह पर आ गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के दरमियान फर्क कम होकर 1 रुपये 4 पैसे रह गया।
रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय करेंसियों की कदर में भी कमी देखी गई। एक हफ्ते के दौरान यूरो 1 रुपये 76 पैसे सस्ता होकर 333 रुपये 10 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 3 रुपये 48 पैसे कमी के बाद 383 रुपये 45 पैसे पर आ गया। खरीजी करेंसियों में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुत्तहदा अरब इमारात का दिरहम 2 पैसे बढ़कर 77 रुपये 25 पैसे, जबकि सऊदी रियाल 3 पैसे इजाफे के बाद 75 रुपये 41 पैसे का हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई। स्टेट बैंक के ज़खायर में 5 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा हुआ, जिसके बाद स्टेट बैंक के मजमूई ज़खायर बढ़कर 16 अरब 15 करोड़ 70 लाख डॉलर हो गए। अशरफ खान, सिटी 21। सोने और चांदी की कीमतों में फिर इजाफा। 1 तोला सोना 11,700 रुपये महंगा, 1 तोला चांदी 444 रुपये इजाफे के बाद 8,269 रुपये पर पहुँच गई। आलमी बाजार में सरमायाकारों की फिर से सोने और चांदी में खरीदारी देखी गई। आलमी मार्केट में सोना $117 महंगा होकर 4,967 डॉलर फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे पर मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 11,700 रुपये महंगा होकर 5,19,462 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 10,030 रुपये बढ़कर 4,45,354 रुपये का हो गया। आलमी बैंक ने सिंध में नए तरक्याती मंसूबे शुरू करने की यकीन दहानी करा दी। वर्ल्ड बैंक ने 2036 तक सूबे को कर्जों और माली मुआवनत फराहम करने का ऐलान किया है। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने सिंध हुकूमत को 2030 तक अपने अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत की है, जबकि इसके बाद भी कर्जे जारी रहेंगे। सिंध में वर्ल्ड बैंक के तहत मौजूदा 3 अरब 80 करोड़ डॉलर के मनसूबे सेहत, पानी, हाउसिंग, तालीम और ख़वातीन के शोबों में जारी हैं। वर्ल्ड बैंक के ताउन से सूबे में 1600 कम्यूनिटी हेल्थ वर्कर्स भर्ती किए जाएंगे ताकि सेहत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। CPSP के 59वें कॉन्वोकेशन की तकरीबात कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन पाकिस्तान के सदर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना है कि कॉलेज ने अब तक 50,000 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट तैयार किए हैं। यहाँ से तालीम याफ्ता दुनिया भर में खदमात सरअंजाम दे रहे हैं। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस सर्जन पाकिस्तान मुल्क की आला तिब्बी तालीम का सबसे बड़ा इदारा 62 में इस्टेब्लिश होने के बाद 50,000 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट और 40,000 से ज़्यादा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कॉलेज अपनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराता है हर साल। 2023, 2024 दुनिया भर के रॉयल कॉलेजेस के प्रेसिडेंट तशरीफ़ लाए। अभी 6, 7 और 8 फरवरी को हमारी 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिकल एजुकेशन, जिसमें आज देख रहे हैं, आज उसका इनॉग्रल सेशन है। कल कन्वोकेशन 59th हुई, जिसमें हमने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ग्लासगो और रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन कनाडा के प्रेसिडेंट को एक ऑनर भी किया और आज वो हमारे की नोट स्पीकर है, सेशन को चेयर्स कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर के रॉयल कॉलेजेस के सदूर मौजूद हैं, जिसमें ख़ास तौर पे कनाडा के सदर पहली मरतबा है रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन कनाडा, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ग्लासगो, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एडिनबरा, रॉयल कॉलेज थाईलैंड से, इसी तरीके से श्रीलंका, अमान, मिडल ईस्ट, सार्क रीजन, डेवलपर्ड और ACCME जो एक्रेडिटिंग बॉडी पूरी दुनिया की होती है, इसके सदर प्रोफेसर ग्राहम तशरीफ़ लाए। इस लिहाज से तकरीबन 20 के करीब ममालिक से डेलीगेट्स आए हुए। रॉयल कॉलेज के अलावा लीडर्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च स्कॉलर इस वक्त सेशन चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है, इसमें कंपैशन है, रेजिलियंस है, कोलैबोरेशन है, इनोवेशन है। और रेजिलियंस और कंपैशन यानी सॉफ्ट स्किल डॉक्टर के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। महकमा खेल के ज़ेर एहतमाम मिठी में मुनक्किद होने वाला दूसरा थर्ड स्पोर्ट्स फेस्टिवल कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इवेंट में हज़ारों एथलीट्स ने हिस्सा लिया। सेक्रेटरी स्पोर्ट मुनव्वर अली ने कामयाबी हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए। देखते हैं जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट। सिंध हुकूमत और महकमा खेल के ज़ेर एहतमाम मिट्टी में मुनक्किद होने वाला दूसरा थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल रंगारंग तकरीब के साथ ख़त्म। मुकाबलों के नताइज के मुताबिक रस्साकशी और फुटबॉल में वेस्ट स्कूल मिट्टी ने कामयाबी हासिल की। वंज वट्टी के मुकाबलों में नॉर्थ स्कूल गर्ल्स मिट्टी ने पहली पोजीशन अपने नाम की। बॉयज शूटिंग बॉल में मीरपुर खास और थरपारकर की टीमें कामयाब हुईं। गर्ल्स क्रिकेट मैच में टूर्नामेंट गर्ल्स हाई स्कूल नॉर्थ कॉलोनी फातेह ठहरी। तमाम कामयाब और नुमाया टीमों को कैश इनामात और ट्रॉफियां दी गईं। हर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान ऊँटों और घोड़ों की रेस, रिवायती खेल, मलाखड़ा
और मिनी मैराथन जैसे दिलचस्प मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी खेल सिंध मुनव्वर अली महेसर थे, जिन्होंने मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों और टीमों में कैश इनामात, ट्रॉफियां और शील्ड तकसीम की। जावेद इकबाल, सिटी 21। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।